I am Utkarsh. I'm a master's student at JNU, French and Francophone Studies, and I will be your moderator today. Uh, I welcome everyone to the second edition of Shodh Samvad Mahakumbh 2025 of our Shodh Yatra internship on the topic of field work in the Mahakumbh Mela, Dharm, Parampara or Lok Parkrishti. To start this samvad, first of all, I would like to welcome our keynote speaker, Sri Badrinaran Ji, Director of Govind Ballabh Pant Samajik Vigyan Sanstha. Sir is a seasoned academician and a popular literary figure. You have decades of fieldwork experience. We are thankful for the precious time that Sir has given us. Sir, I, on the behalf of Shodh team and all our interns, welcome you. We have with us Arjun Anandji, Shodh National Convener. Arjun Anandji is a doctoral fellow at GNU. Before we start this session, I would like to give a small disclaimer. Every one of you have your diary. I would like you to please keep your questions and your inquiries in your diary and keep them ready for the Q&A session that we'll have after the talk. So, as to move forward this talk, sir, I invite you, welcome you to stage. The stage is yours, sir. Thank you so much. So, mm, the format of the lecture would be I'll speak 30 minutes and 15 minutes maybe question answer session. So that will be. You are from different parts of country and you came here to understand. You came here for what? You came here for what? What is purpose? Just to understand Kumbh or to research Kumbh or to study Kumbh? What is your purpose? So to explore and learn new things here. New thing everywhere, new thing you can find? No, sir, here you can see the unity of different cultures, different societies, different states, because everyone motto is same. So just see or research? Explore. Even research. Research. Because seeing, understanding and researching are interlinked, but they are different. Because seeing as a trespasser, seeing as a tourist, seeing as a pilgrims, whatever. Understanding the processes, how the things are happening. And the researching means understanding processes, seeing, understanding processes, and exploring pattern within that. Which kind of pattern is emerging? And through that pattern, you can create, you can theorize. So research ultimately lead to you a certain kind of theorization, and that theorization can be possible if you will see the pattern. But for that, there are various ways to research. You are research intern, no? आप लोग रिसर्च इंटर्न? ये जो अभी जैसे बोलते हैं मंगल फाउंडेशन से, तो हम लेक्चर से शोध की तरफ से करवा रहे हैं, पर ये भी स्टूडेंट्स आ गए हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी ऑब्जर्वेशन से लिख रहे हैं। पर जो शोध का जो इंटर्नशिप है, उसका हेतु ये है कि हम डॉक्यूमेंट करेंगे जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है तीर्थयात्रियों का, कल्पवासियों का, साधुओं का, और यहाँ तक कि प्रबंधकों का भी, जो नॉन गवर्नमेंटल स्वयं सेवक अपने आप स्वयं से इच्छा से काम कर रहे हैं, तो उनका क्या इंस्पिरेशन है, वो सब हम डॉक्यूमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट इन विच वे? ऑडियो यूज कर रहे हैं, ऑडियो वीडियोस। सर, इसमें एक चीज हम बच्चों से पूछ ले, सब लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं क्या? सब लोग, क्योंकि काफी लोग के चेहरों से लग रहा है कि वो ब्लैंक। अच्छा, ब्लैंक। अच्छा, तो हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में, हाँ, हिंदी में बात करें, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेंगे। तो इसलिए मैंने पूछा कि जैसे ही आप जिस मोड्स में डॉक्यूमेंट करोगे, तो आपके रिसर्च का जो मोड है वो भी चेंज हो जाता है, बिकॉज माध्यम बदल जाता है। जैसे अगर आप यू आर राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस, तो वहाँ एक अलग तरह से आपको काम करना पड़ेगा। इफ यू आर मेकिंग वीडियोज एंड ऑडियो, देन यू नीड टू हैव अनदर काइंड ऑफ skill and another way to look the reality. One has to clarify or make clear in the mind that how I am going to document. तो एक तो ये होता है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि कुंभ में आने के बहुत तरह के पर्पस होते हैं। जो लोग आते हैं कुंभ में,
पहली बात ये होती है कि ये हम समझें कि उनका लक्ष्य क्या है, क्यों आए हैं। तो मोस्ट ऑफ ये आप एक्सपीरियंशियल नॉलेज जब आप देखें कुंभ के लोगों का, तो पहला प्रश्न अपने दिमाग में यही करें कि हम ये समझें कि ये क्यों आए हैं यहाँ, इतने दूर से, इतनी इतनी जगहों से धक्के खाते हुए क्यों आए हैं, या साधु संत आए हैं तो ये क्यों आए हैं, अपना छोड़ छाड़ करके जहाँ जहाँ भी जिस मठ में रह रहे हैं उनकी अपनी एक सुविधा कंफर्ट है, वो सब छोड़ करके यहाँ क्यों आए। तो इसके उत्तर आपको मिलेंगे दो तरह के, एक होगा प्रोसेसुअल आंसर और एक होगा इसेंशियल आंसर। प्रोसेसुअल आंसर क्या होगा कि हाँ हम गंगा नहाने आए हैं, हम ये आए हैं, हम वो आए हैं। और इसेंशियल आंसर ये होगा कि आप उसमें तत्व ढूंढे कि किन क्या उसका बेसिक, उसका इसेंशियल पर्पस क्या है। जो तो उसमें कोई कहेगा कि भाई धर्म के लिए आए हैं, कोई कहेगा कि भगवान के लिए आए हैं, कोई कहेगा गंगा मैया के लिए आए हैं, कोई कहेगा, तो इस तरह के आपको उत्तर मिलेंगे। उत्तर नहीं भी मिले तो आपको इंडिकेशन मिलेगा, उन इंडिकेशन के थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और एक ही उत्तर नहीं मिलेगा आपको, तरह तरह के उत्तर मिलेंगे। जैसे जो गांव के लोग आए हैं उनका अपना उत्तर होगा, जो साधु संत आए हैं उनका अपना उत्तर होगा। तो आप एज ए रिसर्चर ये मत सोचिए कि जो साधु संत बोल रहे हैं वो ज्यादा ज्ञानी है तो ज्यादा बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन जो गांव के लोग आए हैं जो बोल रहे हैं उसमें भी ज्ञान है, उसमें भी एक्सपीरियंस है, बट उनका मीडियम अलग है बोलने का, क्योंकि वो गांव की भाषा में, गांव के अपने एवरीडे एक्सपीरियंस में अपने अनुभव रख रहे हैं। और संत लोग नॉलेज, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस को नॉलेज में बदल लिया है, इतने सालों से उनका योग है, तपस्या है, जो भी है, तो वो उसको आर्टिकुलेट हो गए हैं। तो कोई भी संत अगर आपसे बात करेगा तो आर्टिकुलेट ढंग से बात करेगा, क्योंकि उसके पास एक परंपरा की भाषा है। परंपरा की भाषा, दो तरह की परंपरा होती है, एक होती है महान परंपरा, एक होती है लोक परंपरा, जिसको आपने पढ़ा होगा एंथ्रोपोलॉजी में, ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन। मान लीजिए उसको हम न भी माने तो भी एक हमारी शास्त्रिक भाषा है और एक देशज भाषा है। शास्त्रिक और मार्गिक जिसको कहते हैं ना, देशज और मार्गिक। तो जो शास्त्रिक भाषा है उसके जो शब्दावलियां हैं, उसके जो व्याख्या है, वो संतों को शास्त्रिक भाषा से मिल जाती है। तो वो जब बोलते हैं तो उसमें उसकी छवि दिखाई पड़ेगी आपको, बड़े बड़े जो 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 परंपरा के शब्द आएंगे। लेकिन गांव का जो लोग बोलेंगे वो उसमें देशज एक्सपीरियंस दिखाई पड़ेगा, जिसमें एवरीडे लैंग्वेज जिसको कहते हैं हम लोग, एवरीडे लैंग्वेज आपको उसमें दिखाई पड़ेगा। तो उस एवरीडे लैंग्वेज को आपको समझना है और दोनों को लिंक करना है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, शास्त्रिक और देशज दोनों एक तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और उनके लिंकेजेज को समझना है कि वो लिंकेजेज क्या है। रिसर्चर को, एज ए रिसर्चर you need to understand what are the linkages between these two languages, two diction of explaining or expressing experience, being as a कुंभ यात्री और कुंभ में पार्टिसिपेंट ऑफ द। तीसरी तरह की जो जो भाषा होती है वो होती है साधु संतों में भी आपको मल्टीपल लैंग्वेज मिलेगा। एक तो जैसा मैंने बोला कि बड़े अखाड़े, बड़े ज्ञानी, एक जो जो मार्जिनल संत हैं, मार्जिनल मतलब छोटे छोटे टेंटों में बैठे हुए हैं, अपना कुछ बतिया रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई वो अपने सुख के लिए आए हैं, उनका कोई बड़ा फॉलोअर आपको नहीं मिलेगा, but they have their own interpretation of telling their experience, and you need to document those also. Mostly what we do, we focus on the biggers, यानी परमार्थ निकेतन चले गए, अवधेशानंद जी को मिल लिया, रितंबरा जी के यहाँ चले गए, नो वी डू लाइक दैट, जो जिसको मीडिया ने महत्वपूर्ण बना दिया है। बट दोज हु आर स्मॉलर इन देयर appearance in the मेला, मोस्टली वी डोंट पे अटेंशन ऑन देम। तो आपको हमेशा उन मार्जिनल्स जो हमारी धार्मिक सेक्ट्स हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दादूपंथी दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पे आपको कबीरपंथी दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट दिखाई पड़ेंगे, यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे जिनको कि हम जानते भी नहीं कौन, अघोर पंथ दिखाई पड़ेगा।
नाथपंथीज भी दिखाई पड़ेंगे आपको, बहुत सारे तरह के सेक्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये सभी सनातन के किसी न किसी तरह से हिस्सा हो जाते हैं, तभी वो यहाँ आते हैं। तो आपको यू ट्राई टू डॉक्यूमेंट देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो। एंड कुंभ में आने के पहले कुंभ के बारे में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, क्या क्या पढ़ा, कुछ पढ़ाई करके आए? सर उसके कुंभ के बारे में ये क्यों हो रहा है, 144 इयर्स बाद ये क्यों हो रहा है, and इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, कितने सेक्टर्स है, कितने किलोमीटर्स में फैला हुआ है, ये सारा डिटेल थोड़ा ओवरव्यू देख ये सब पढ़ा, लेकिन कुंभ का मतलब क्या? हाँ बताओ। अच्छा, और कोई? तो एकदम ठीक आप लोग रास्ते पे हैं। मेरा कहना है कि जब भी whenever you go to do any field work, first of all read as much as possible about that tradition, that festival, that ritual, that मेला को खूब पढ़ना चाहिए। अच्छा, कुंभ इज ए मेला, कुंभ मेला कहते हैं। कुंभ इज ए स्पेस। कुंभ के भी बहुत मतलब है, कुंभ का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। तो कुंभ मेला भी है, मेला जहाँ, मेला का मतलब क्या है? मेला जहाँ लोग मिलते हैं, सिंपल अर्थ। जब मिलते हैं तो बहुत तरह के एक्सचेंज भी होंगे, सामान खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, संवाद होगा, भाषण होगा, प्रवचन होगा, कथा होगा, ये सब होगा। तो मेलों पर आपने क्या पढ़ा है? मेला पर, भारत में मेला ट्रेडिशन पे क्या पढ़ा है? नहीं, मेला पर कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा लेख, कुछ अच्छा पढ़ा है? किसका? राणा पीवी सिंह जी, प्रोफेसर राणा। अच्छा, मेलों पर देखिए, एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत अच्छा लेख है गोगा पीर मेला पर, जो पंजाब में होता है। बहुत ही अच्छा लेख है, उसको जरूर पढ़िए। फिर उसके बाद मेलों पर फ्रेंच एनालिसिस स्कूल ने बहुत स्टडी की है, मार्क ब्लॉक, मल्टीपल वॉल्यूम्स हैं वहाँ पे मेलों पर। भारत में मेलों पर अध्ययन कम हुआ है, क्योंकि मेला हम लोग मानते ही नहीं है कि कोई एक एकेडमिक कोर्स का विषय है, तो इस पर रिसर्च कम हुआ है, अध्ययन कम हुआ है। तो मेलों पर भी आपको, यानी कुंभ एक रिलीजियस स्पेस के रूप में आप देखते हैं, कुंभ को एक फेस्टिविटी के रूप में भी देखते हैं, कुंभ को एक मेला के रूप में देखते हैं। तो मेरा कहना है कि जब किसी भी चीज से को रिसर्च के लिए जाइए तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स को एक्सप्लोर करिए और सोचिए कि ये क्या क्या है, कुंभ अपने आप में क्या क्या है। एक्शन का स्पेस भी है, हर आदमी यहाँ टेंट लगा के बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है, सेवा का स्पेस भी है, दान का स्पेस भी है, ये सारे इंटीग्रेटेड हैं जो जो हिंदू परंपरा में जो मेलों की संरचना है। तो आपको उस हिंदू परंपरा के मेलों की संरचना के बारे में भी जानने की जरूरत है। तो जब ये, तो पहली शुरुआत किसी भी फील्ड वर्क का क्या करेंगे कि हम ये सोचेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। पहला सवाल अपने से पूछिए, हम क्यों जा रहे हैं। तो सवाल आएगा कि देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, या रिसर्च करने जा रहे हैं। तो जब रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसकी बड़ी तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर खूब अच्छा होना चाहिए। देश दुनिया में जितना भी रिसर्च हुआ है उनको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर जितने लिखा गया है इसके बारे में उसको जानना चाहिए। यहाँ मेलों पर साहित्यकारों ने क्या क्या लिखा है आप लोगों ने देखा है? कुंभ मेले पर किसी साहित्यकार का आपको संस्मरण या कुछ याद है या कुछ पढ़ा है आपने? एक ट्रैवल लॉग है, जो कि फ्रेंच स्कॉलर ही है, जब आए थे लगभग 60 साल पहले, उनका एक ट्रैवल है, एमिली ब्लॉक में कभी पहला एक्सपीरियंस था। उनको पता भी नहीं था कि कुंभ क्या है, भारत में आएंगे और उस समय कुंभ हो रहा है, तो उनका वो ट्रैवल गुड, वो फिलोसफिकल किताब नहीं है, एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल। दूसरा, भारतीय साहित्यकारों ने कुछ लिखा है? निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा का बहुत ही बढ़िया पीस है, आप लोग जरूर पढ़िए। कुंभ मेले पर 17 में शायद वो आए थे और एक अच्छा पीस उन्होंने दिनमान में लिखा था।
उसके बाद जैसा इन्होंने बताया, फ्रेंच स्कॉलर्स ने बहुत काम किया है। एक फ्रेंच स्कॉलर हमारे दोस्त ही हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं बड़े, तो उन्होंने नाव बनाई और नाव से हरिद्वार से खुद ही नाव चलाते हुए, खुद ही नाव बनाई, नाव चलाते हुए हरिद्वार से लेके यहाँ तक आए, फिर कुंभ मेला अटेंड किया, और जितने सॉन्ग्स हैं गंगा के किनारे के, वो सब उन्होंने कलेक्ट किए। उसकी एक किताब अभी उनकी छपी नहीं है, तो बनाया है उन्होंने। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्पस होते हैं। तो आपका रिसर्च है, तो रिसर्च को, तो जब रिसर्च के लिए आइए तो फिर प्लान करके समय का इस्तेमाल करिए, कि तब आपके सामने सवाल उठेगा कि अब इतनी बड़ी दुनिया है मेला की, हम इसमें किस पे फोकस करें, हम क्या करें, क्योंकि तो हर जगह और हर चीज मोहक है, जहाँ जाइए वहाँ भी आपको आकर्षक लगता है। तो आकर्षण कई बार आपको रिसर्च नहीं करने देता, वो फैसिनेट करता है। फैसिनेशन में आप बार बार वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, आपको लगता है मैं फील्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उस फील्ड वर्क से कुछ निकलता नहीं है। मोस्ट ऑफ हमने देखा है 80% प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स इसी में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पैसा भी खर्च होता है, संसाधन भी जाता है, वो मेहनत भी करते हैं, बट आउटपुट नहीं होता है। तो पहले आपको अपना लक्ष्य के आधार पे अपनी सैंपल तय करनी है कि हम किस पर रिसर्च करेंगे, क्या करेंगे। तो कोई ऐसे ले सकता है कि भाई कुंभ में सेवा पर हम काम करेंगे, सेवा पे काम करेंगे तो सेवा की जो संस्थाएं हैं उनको हम चॉकआउट पहले करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे। तो पहले आप जो भी करना हो उसको नैरो डाउन करिए, नैरो डाउन करके उसको फिर उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें उस मेले में है उसको मैप करिए। लेकिन समय आपके पास 2 ही महीने का विंडो है, 1 ही महीने का विंडो, बड़ा नहीं है। तो वो मैपिंग कैसे करेंगे आप? सेकेंडरी लिटरेचर से करेंगे। सेकेंडरी लिटरेचर कहाँ से मिलेगा? कुंभ मेला प्रशासन से मिलेगा। कितने यहाँ सेवा संस्थाएं आई हैं, कौन कौन सी आई हैं, उनके पास पूरा लिस्ट होता है, क्योंकि वो जमीन देते हैं वो। तो वहां से आप चीजें निकालेंगे, और निकाल करके फिर आप अपने, फिर अब आप वहां पर आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई तरह की सेवा संस्थाएं काम कर रही हैं। तो आपके पास समय कम है, और आपका लक्ष्य, जैसे कुछ लोगों के लक्ष्य होता है अध्यात्म को समझना, इसमें स्पिरिचुअल मीनिंग्स क्या है, तो वो स्पिरिचुअलिटी के दुनिया में जो संस्थाएं काम कर रही हैं। कुछ लोगों का होता है जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनजीओज हैं, उनके कामों को समझना, तो वहाँ पे काम करते हैं। कुछ इकोलॉजी को समझना चाहते हैं, इकोलॉजी पे काम करते हैं। तो अलग अलग उस आधार पे आप अपनी ब्रांचेज तय करिए कि कहाँ पे आप जाएंगे, और फिर उसमें आप कुछ संस्थाओं को पिन पॉइंट कर लीजिए, और पूरे 2 महीना उन संस्थाओं पे काम करिए। उसका तरीका यह है कि पहले आप उनकी प्रोफाइलिंग करिए, उन संस्था की प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग करने का मतलब आप ये जानिए, पता करिए ये संस्था कब बनी, कैसे बनी, इसने क्या क्या किया, इसका प्रोफाइल क्या। आजकल तो नेट पे बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध है, वहां से ले लीजिए, और ले करके बना के तब उस आधार पे आप क्वेश्चनायर्स बनाइए कि अब हम इसमें क्या क्या क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चनायर्स, रिसर्च क्वेश्चंस जो आप बनाएंगे वो 2 तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, आप सब लोग जानते हैं। तो दोनों में आप तय करिए कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। कुछ लोग क्वांटिटेटिव करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव कर सकते हैं, कुछ लोग क्वालिटेटिव करना चाहते हैं, बट आई विल एडवाइस यू दैट इन दिस काइंड ऑफ स्पेस वन शुड डू क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप वहाँ जाइए, बैठिए, पार्टिसिपेंट्स बनिए, उनके साथ काम भी करिए, प्रसाद भी खाइए उनके साथ, फिर आप समझ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, भाषा से, संवाद से कई बार मीनिंग नहीं समझ में आते हैं, मीनिंग एक्शन से समझ में आते हैं। तो संवाद को जब आप एक्शन से जोड़ेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। तो संवाद को एक्शन से जोड़ने की जरूरत है। मोस्टली फेस वैल्यू पर किसी संत ने कुछ कह दिया तो आपको लगता है कि वो सही है, लेकिन आप देखिए कि उसके जीवन में वो कैसे आ रहा है। तो वो जब 2 महीना आप देखेंगे, उस संत को रोज रोज फॉलो करेंगे आप, जैसे मान लीजिए अवधेशानंद जी हैं, आपने रोज रोज उनको फॉलो किया, तो आपको समझ में आएगा कि इनकी जीवन लाइफ यूनिवर्स क्या है, किस तरह का इनका में ये जो दुनिया है कितनी फैली हुई है, कितनी गहरी है, कितनी डिपेंड है। एंड देन यू कैन राइट इन योर रिपोर्ट कि ये इस तरह का ये है। और चूंकि आप लोग एक खास और उसमें अब जैसे कुछ लोगों के प्रश्न होंगे कि भाई इसमें भारतीयता क्या है कुंभ मेले, तो भारतीयता तो है ही है, ये कोई ऐसा बहुत ही ऑब्वियस रिसर्च क्वेश्चन, इसको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको है ही। तो रिसर्च क्वेश्चन भी बहुत पॉइंटेड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो अनऑब्वियस हो, वो नहीं जो ऑब्वियस है। ऑब्वियस पर रिसर्च नहीं होता है,
जो सर्व व्याप्त है उस पर क्या रिसर्च होना है? वो तो कोई भी देख के कह देगा कि भाई ये तो भारतीय परंपरा है, हमारा ये सनातनी परंपरा है, हमारा ये है, हमारा रिसर्च होगा उस पर कि आप देखेंगे कि भारतीय परंपरा की जो है वो क्या है, और वो भारतीय परंपरा मेले में कैसे दिखाई पड़ती है, इस मेले और मेलों में कैसे दिखाई पड़ती है, और इस मेले में कैसे दिखाई पड़ती है। इस मेले में आपने देखा होगा कि जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेलों की बहुत ही बड़ी लाइफ यूनिवर्स होती है। यहाँ पर सुग्गा उड़ाने वाला भी मिलेगा, यहाँ पर मदारी भी मिलेगा आपको, यहाँ पर कुमार विश्वास भी दिखेंगे आपको, यहाँ पर अवधेशानंद जी भी दिखेंगे, तरह तरह के चर्याएं यहाँ चल रही होती हैं। अब आपको देखना है कि सबको तो आप समझ नहीं सकते, लेकिन अगर आपका ग्रुप 30 लोगों का है तो आप अपने काम बांट सकते हैं। कोई मदारियों को फॉलो करे, कोई सुग्गे वालों को फॉलो करे, कोई तरह तरह के सर्कस खत्म हो रहे हैं तो उनको फॉलो करे कि कैसे या हैं तो किस रूप में हैं, कोई कोई प्रवचनों को फॉलो करे, कोई कुमार विश्वास टाइप के लोगों को फॉलो करे, तो तरह तरह के जो हैं वो उनको फॉलो करें, और तब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट एक मेले पर बन करके आएगी। अब मैं आपको, चूंकि समय ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया, और आजकल तो जैसे ही ऑडियो वीडियो लेके जाएंगे तो सब आपसे बताने लगेंगे कि और उसे तस्वीर ले लीजिए और फिर वायरल हो जाए, तो वहां पे आपको सही रिसर्च आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैमरे के लिए बोल रहा है। तो कैमरा है इट्स ओन फैसिनेशन, वो आपके उत्तर को, प्रश्न के उत्तर को मॉडिफाई कर देता है। तो मीडियम से बहुत, तो अच्छे रिसर्चर को ये कैमरा और मोबाइल से थोड़ा बचा करके रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, फोटो ले लीजिए दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने फोटो ले लिया, बट ट्राई टू इंगेज इन, जिसको हम लोग कहते हैं बात से बात, इट इज कॉल्ड बात से बात मेथोडोलॉजी। बात से बात से आप चीजें निकालने की शुरू करिए। बात से बात पर बहुत लंबा समय लगेगा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। जैसे किसी एक बात निकली, उस बात से फिर कैसे आप, पहले बात से बात के लिए कैसे आप रिश्ते बनाएंगे उसके साथ, वो रिश्ता किस तरह का होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बनेंगे किसी से आपके, बहुत टेम्पररी रिलेशन बनेंगे। क्योंकि यहाँ ये मेला है, मेला क्या है, फानी है। फानी मतलब आए और गए, जो आया वो मिला जुला आपसे फिर चला जाता है, कोई याद रखता है, कोई भूल जाता है। तो यहाँ पर जो रिश्ते बनेंगे आपके बहुत ट्रांजिटरी बनेंगे। तो ट्रांजिटरी रिश्ते का रिसर्च में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, एक बड़ा सवाल है। तो वो आपको देखना है, क्योंकि सिर्फ वो कह के चला गया यही आंसर नहीं है और यही रिसर्च नहीं है। जो कह के गया वो कितना सच है, या सच नहीं भी है तो कितना सार्थक है। तो ये प्रश्न जो है, क्योंकि सच तो, सच की अवधारणा वैसे ही आजकल प्रोडक्टाइज हो गई है, आप लोगों ने पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह पढ़ाई होगा कि उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि भाई जो जैसे देखता है वैसा सच होता है। अपने अपने ढंग से हम रियलिटी को देखते हैं, जो रियलिटी दिखाई पड़ती है। तो लेकिन हम कहते हैं भाई एक सनातन सत्य है जो इवॉल्व करती रहती है। तो सनातन सत्य भी वही है, क्योंकि वो सनातन सत्य इवॉल्व करता है। जैसे मान लीजिए अवतार, 100 अवतार्स, तो एक हर अवतार एक का रिपीटिशन नहीं होता है, एक रिपीटिशन भी होता है, उसमें नयापन भी होता है, जिसको कहते हैं ना पुनर्नवा। जैसे राम हुए फिर कृष्ण हुए, या कृष्ण हुए तो फिर कोई और हुआ, फिर कोई और हुआ, तो एक तरह का नहीं है, वो पुनर्नवा है। यानी उसका सेंट्रल इसेंस एक है, बट वो अपने रूप लगातार बदलता रहता है। यही रिसर्च भी है, रिसर्च भी यही है। रिसर्च में भी आपको यही ढूंढना है कि कैसे हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा पुनर्नवा होती जाती है। अब आज बहुत सारे नए संत आ गए हैं, नए ढंग से वो परंपरा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। बहुत तरह के समाज सुधार संतों के बीच चल रहा है। आरएसएस का आपको पता ही होगा, मैं उनको कहता हूँ कि इट्स द बिगेस्ट सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो हिंदू धर्म में सामाजिक सुधार का काम आर्य समाज के बाद रुक गया था, उसको संघ ने पिकअप किया। और फिर ढेर सारी ऐसे संत संस्थाएं हैं, सेक्ट्स हैं, कबीर पंथ है, रविदास पंथ है, खुद जो हमारे शंकराचार्य हैं, वो अपने अपने ढंग से सुधार का काम करते हैं। सबकी अपनी एक जगह है, सबकी अपनी एक सीमा है, क्योंकि भारतीय समाज इतना बड़ा महासागर है कि किसी एक के प्रयास से कुछ नहीं हो सकता। तो अनंत को प्रयास करना है, और सभी अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं। तो यही रिसर्च है कि देखना कि वो जो
सभी अपने अपने तरह से कर रहे हैं, वो क्या है, उसमें कितना फर्क है, कितना एकता है, कितना सिमिलरिटी है, कितना नयापन है, तो ये सारी बातें आपको समझनी होगी। और भारतीय परंपरा को तो मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा मेलों के बारे में बात बताऊं तो मेले कैसे शुरू हुए। मेलों का अगर इतिहास पढ़ेंगे, मेलों का इतिहास कहाँ से खोजेंगे आप? मेलों के बारे में पढ़ना होगा तो जैसा मैंने बोला कि मार्क ब्लॉक वगैरह काम देखेंगे, लेकिन भारत में अगर आपको मेलों को समझना है तो क्या करेंगे? तो आपको कुछ क्या पता है? हाँ, लेकिन उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे कि कैसे शुरू हुआ? सर सबसे पहले हर्षवर्धन ने यहाँ पर यहाँ पे मेला जो है तो हुक्म हुआ ना, उन्होंने स्टार्ट। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हर्षवर्धन किया इस पर एक ही दो सोर्स है ना, मल्टीपल सोर्स तो है नहीं एक जगह। हाँ, और एक जगह वो बोला वेनसांग उसमें जिक्र आता है ना चाइनीज यात्री में कि वो यहाँ पर एक राजा आता था और वो यहाँ पे दान करके चला जाता था, तो वहां से शुरू होता है वो। फिर वो ये भी होता है कि भाई हर्ष बौद्ध हो गए थे, पता नहीं क्या, वो बहुत सारा डिफिनिटिव कहा नहीं जा सकता। जब बौद्ध हो गए थे तो फिर हिंदू परंपरा या सनातनी परंपरा और मेलों से कैसे उनका संबंध बनता है, ये भी एक सवाल है। लेकिन खैर चलिए उसको हम छोड़ते हैं, हम तो दूसरी बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि किसी भी समाज में मेले क्यों लगते हैं, मेले लगने के कारण मैं उनके सांसारिक अर्थों पे जा रहा हूँ, तो उसकी हिस्ट्री आपको कहाँ से मिलेगी? उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जो सेंसस है, जो अंग्रेज जब आए तो सेंसस और गजेटियस, उनमें उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा, हर मेले का सर्वे किया है। जहाँ जैसे जिस जिले में वो काम कर रहा है ऑफिसर, वहाँ कोई मेला लगता है तो उस मेले के बारे में डिटेल है उसमें। और मोस्टली मुझे जो जितना मैंने समझा कि मेले क्यों लगते हैं उनके बयानों से, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। तरह तरह के मेले लगते हैं, जैसे एक तो देवताओं के अराउंड मेले लगते हैं, डीटीज के अराउंड हैं, सीजन के हिसाब से भी लगते हैं। सीजन के हिसाब से, यानी फसलों के मेले लगते हैं, पशुओं के मेलों के बारे में आप जानते ही होंगे। बहुत सारे मेले जो लोकल उत्पाद को बेचने के लिए अंग्रेजों ने शुरू किए, यानी झारखंड में बहुत ऐसे मेले थे जो सिर्फ उनके वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बिके, उसके लिए अंग्रेजों ने शुरू किया और वो फिर मेले में बदल गए। पहले छोटा एक बाजार शुरू किया, उस बाजार को कैसे, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे ये मेला बना। बहुत इंटरेस्टिंग है, कई मेले ऐसे हैं जो किसी एक आदमी ने शुरू किया, जैसे एक आदमी का बेटा नहीं हो रहा था और बहुत सालों बाद उसको बच्चा हुआ, तो बच्चा हुआ तो उसने वहां पर एक देवता को वो कर दी, करके वहां पर वो पूजा करने लगा, उसके साथ उसके परिवार के लोग जाने लगे, फिर समाज के लोग जाने लगे, फिर वो वहां एक मेला शुरू हो गया। तो जिस दिन उसका बच्चा हुआ था उस दिन वो मेला लगता है। सासाराम के पास ऐसे मेलों का जिक्र ढेर सारे, वो गजेटियर्स में आपको बहुत सारे, तो बहुत तरह के मेले लगते हैं भारतीय समाज में। तो आपको ये समझना होगा कुंभ का मेला किस तरह का मेला है। मेला है लेकिन किस तरह का है? एक तो इसकी जो कहते हैं ना जो रूपक, यानी मेले का रूपक क्या है कुंभ मेले का। दूसरा आप देखेंगे कि इसका मेले का अर्थ, अब उसमें अर्थ अगर आप देखना शुरू करेंगे तो हर मेले में आपको अलग अलग अर्थ दिखाई पड़ेगा। जैसे अब वो जो एक्सचेंज के लिए मेला हुआ, जो सामान बेचने के लिए हुआ, उसका तो कुंभ मेले जैसे मेले से संबंध उस तरह से नहीं बनता, लेकिन ये जरूर है कि कुंभ मेले में भी सामानों की बिक्री होती है। यहाँ पर भी एक अपनी मार्केटिंग है, सिंदूर की दुकान मिलेगी, चूड़ी की दुकान मिलेगी, बहुत ऐसे ऐसे सामानों की दुकान मिलेगी, कंबल की दुकान मिलेगी, जो आपको जनरली हमारे बाजारों में उस तरह से मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स नहीं है। यहाँ पर वो मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, फूलमाला मिलेगा, तो वो सांसारिक जिसको कहते हैं कार्य व्यापार, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। और आध्यात्मिक अर्थ भी मिलेंगे, पारंपरिक अर्थ भी मिलेंगे। और ये आध्यात्मिक अर्थ, पारंपरिक अर्थ भारतीय समाज के मूल आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो भारतीय समाज क्या बनता है, लोगों से बनता है। और लोग क्या होते हैं, एक खास तरह से उनकी आत्मा होती है। वो आत्मा कैसे बनती है? एक खास तरह की सांसारिक वैचारिक संवादों से बनती है। जो आदमी का मन होता है वो कैसे बनता है? आज आप मान लीजिए किसी और तरह से सोचते हैं, कल किसी और तरह से सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका आर्टिकुलेशन उस दिशा में बढ़ता है, तो उस तरह के लोगों के साथ आपकी संवाद होता है, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। तो ऐसे ही हमारे लोग भी पहले से ही भजन, कीर्तन, संवाद, ये सारे सुनते सुनाते, कथा, कहानी, गीत, इन सब से लोगों का मन बनता है।
तो जब आप कुंभ में जाएंगे रिसर्च करने तो आपको ये सब भी सुनाई पड़ेगा। कोई औरत बात करते हुए, कोई भजन गा रही होगी, कोई गीत सुना रही होगी, कोई अपने बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे होंगे। पर मंचों में भी सुनते हैं, पर पंडालों में भी सुनते हैं, और आपस में भी। ये जो कल्पवासीज हैं, ये मेला वस्तुतः देखिए, मेला शुरू कैसे हुआ, उसके दो अर्थ हैं। एक जो अर्थ ये है कि ये मेला में क्या होता था कि राजा आते थे। रमता योगी का नाम सुना है आप लोगों ने? रमता योगी के बारे में ये है कि ये 12 साल घूमते हैं और 12वें साल यहाँ कुंभ मेले में आते हैं और स्नान करते हैं। तो ये पहले जब ये मेला लगना शुरू हुआ था तो राजा आते थे, रमता योगी आते थे और संत आते थे। और ये होता था कि एक तरह से रिव्यू ऑफ सोसाइटी, कि आपके राज्य में धर्म की इतनी हानि हो रही है। राजस्थान का कोई राजा बैठा है, देखिए आपके राज्य में मैं गया था, और रमता योगी बताता है, और आपके यहाँ इतनी धर्म की हानि हो रही है, धर्म की रक्षा करिए। तो वो संत उसको, तो इस तरह की एक रिपोर्टिंग होती थी, संवाद होता था, कॉन्क्लेव होता था। इट वॉज ए काइंड ऑफ कॉन्क्लेव। दूसरा क्या है कि लोग आते थे नहाने, नहा करके अध्यात्म करने, एक डिसिप्लिन लाइफ बिताने। तो ये जो कल्पवासीज हैं, ये यहाँ के मुख्य केंद्र हैं रिसर्च के, जो मोस्टली आजकल मीडिया के दौर में छूट जाते हैं। कोई उनसे बात भी नहीं करता, क्योंकि वो तो कोई माला बेचने वाली से बात करेगा, कोई वो हर्षा रिछारिया से बात करेगा, कोई ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो हमारी जो जो कल्पवासीज हैं, ये कुंभ मेले की आत्मा है। मुझे लगता है कि अगर आपको रिसर्च करना है कुंभ मेले पर, तो उन कल्पवासीज पर सेंटर करिए, और वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ज्ञान भी मिलेगा, बहुत अनुभव भी मिलेगा, और बहुत तरह के संवाद भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से एक बेसिक रिसर्च आप कर सकते हैं। और मेला, मेलों से बदल से कुंभ, कुंभ का मेला, कुंभ के मेला की अलग जो जो परिणति है, और उसके मल्टीपल मीनिंग्स के साथ उनसे जुड़े हुए संवाद, संवादों के अलग अलग रूप। तो बहुत बड़ी दुनिया है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। अब मुझे लगता है 10 मिनट हम लोग बातचीत, प्रश्न उत्तर कर ले, फिर हम निकलेंगे। आप लोग बोलो जो उसके दिमाग में जो प्रश्न। मंच खुला है, जो भी इसका कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, हाथ ला कर सकते हैं अपने, इसमें पूछ सकते हैं। सर एक प्रश्न। जी जी बोलिए। सर एक प्रश्न हमारा ये, जैसे कि अगर कुंभ मेला पे अगर हम कोई भाषा को लेकर कोई रिसर्च करने की, तो उसके लिए आप कैसे बढ़े, उसके लिए कोई मटेरियल कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे कि अभी हम, क्योंकि हमारा जो फोकस है फ्रेंच स्टडी है, स्टडी लैंग्वेज, तो इसमें अगर हम कुंभ मेला में अगर सेंटर हम अपना बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा ये जो बैच है कल्पवासी और तीर्थयात्री पे ही फोकस्ड है, लेकिन अगर इसमें हम भाषा के जोड़ना चाहें तो और क्या हो? देखो, तो इसमें तुम्हें जो लिंग्विस्टिक थियरीज तो तुम जानते ही होगे, सारा पढ़ा होगा तुमने, कि ये हमें जो बाख्तिन विल हेल्प यू अ लॉट, कि हम ये मानते हैं कि ये जो स्पेस है, मेला एज ए स्पेस, पब्लिक स्पेस, इट इज हेट्रोग्लेसिया। इट इज हेट्रोग्लेसिया। हेट्रोग्लेसिया मतलब बहुत तरह के भाषाओं का सम्मेलन। तो ये, हाँ, तो ये हेट्रोग्लेसिया डायोग्लेसिया है। तो अब आपको उस हेट्रोग्लेसिया को समझना होगा, कि जैसे इसलिए मैंने कहा कि जो संत बोल रहा है, एक संत, आप ये मत सोचिए कि वही यहाँ की एक भाषा है। उसके साथ जो दूसरा संत बोल रहा है, उसमें और उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है, क्या संवाद है, क्या विवाद है, क्या। तो संवादों को समझना और साथ साथ विवादों को समझना, और विवादों से फिर उन संवादों को एनालाइज करना। तो एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा ये है कि जो जो भाषाएं जब जब दो जगह होती है, तो गांव घरों की स्टेबल लाइफ की लैंग्वेज होती है, एक ट्रांजिटरी स्पेस की लैंग्वेज होती है। तो जैसे कुंभ ये ट्रांजिटरी स्पेस है, 2 महीने के लिए ये लगता है। तो अब यहाँ पर जो संवाद की भाषा है, क्या वही है जो कि स्थायी जीवन की भाषा है, स्थायी जीवन में संवाद की भाषा है, या इसमें कुछ फर्क है, या कुछ बढ़ोतरी है, या कुछ क्या कहते हैं ना, बनावटी है इसमें, या ये रियल है, या क्या है? एक तो ये हो सकता है। तीसरा, बहुत सारी मार्जिनल लैंग्वेजेस यहाँ आपको सुनाई पड़ेंगी। जैसे निषादों की भाषा देखिए, जो कोड लैंग्वेजेस होती हैं, वो आपको सुनाई पड़ेगी। बहुत सारे पंडों की भाषा आपको सुनाई पड़ेगी, वो एक कोड लैंग्वेज होती है। उसको आप पीपल पत्ते वाला पंडा, अब पीपल पत्ते वाला पंडा से क्या अर्थ निकलता है? तो पीपल पत्ता है, क्यों पीपल पत्ता? कटारी वाले पंडा, तो कटारी वाले पंडा से क्या मतलब है, क्या उसका मीनिंग है? तो आप ये
तो ये स्पेस है, यहाँ पर चोरों की भी भाषा होती होगी, जो चोर होते हैं, पिक पॉकेटियर्स हैं, इनकी भी भाषा होती है। तो बहुत तरह के जो भाषाएं यहाँ, क्योंकि ये हेट्रोग्लेसिया है और ये भाषाओं का कुंभ है एक तरह से, अगर आप कहें तो बहुत तरह के लोक भाषाएं तो है ही हैं, लोक भाषाएं। और फिर जो मैंने शुरुआत ही की ना कि एक महान लैंग्वेज होती है हमारी और एक देशज भाषा होती है, तो उनके संबंधों को आप समझ सकते हैं कि देशज से महान के बीच में क्या रिश्ता है, महान से कैसे देशज प्रभावित होता है, देशज से कैसे महान प्रभावित होता है, ग्रेट लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन वो एक बड़ा रिसर्च का हिस्सा है। मुझे लगता है कि उस पर एक बड़ा काम करना होगा और एक लंबा फील्ड वर्क करना होगा, और मुझे लगता है वो एक बार से नहीं होगा। मान लो आप ये आपने एक कुंभ में किया, फिर दूसरे कुंभ अर्ध कुंभ को टैप करो, अभी तुम्हारी उम्र बहुत है, फिर इस तरह से माघ मेला को, फिर और मेलाओं को। ये मेला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या होता है, हमारे एक शोध छात्र हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी बता रहे थे कि ये क्या होता है कि जो जैसे मिर्जापुर में मेला लगता है, जो जैसे देवबंद में वो क्या नाम है, जो देवा का मेला लगता है, ये सारे जैसे ये जो सिंदूर बेचने वाले जो वहां बेचते हैं वो यहाँ भी आ जाते हैं बेचने। पूरा मेला उखड़ के ये जो कुंभ है ये कई मेलों का समागम है। आसपास के जितने मेले हैं उनके जो बंदर नचाने वाले, उनके भालू नचाने वाले, उनके वहाँ पे सर्कस लगाने वाले, वहाँ पे वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये लोकल मेला नहीं है, अब ये तो ग्लोबल नेशनल मेला इसलिए भी हो गया क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़ी कंपनियां यहाँ आ गई हैं, वो अपना स्टॉल लगा रही हैं। लेकिन वैसे भी ये कॉस्मोपोलिटियन मेला है, क्योंकि ये बहुत सारे जगहों के मेलों की संस्कृति को ला करके एक जगह, तो वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। भाषा का जब स्टडी करोगे तो वो पैटर्न भी दिखाई पड़ेगा। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड द दिस एंड दिस हेट्रोग्लेसिया। और हेट्रोग्लेसिया में आपस में क्या संबंध है? हेट्रो होना बड़ी बात नहीं है, बात है कि उस हेट्रो के बीच के रिश्ते क्या हैं, या उस डायोग्लेसिया में जो डायो है उसके बीच के रिश्ते क्या हैं, और उस रिश्ते में पारंपरिक भाषा कैसे काम करती है। क्योंकि तो ये सर धर्म क्या है, मेरा एक प्रश्न है, और धर्म का बदलता स्वरूप जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके विषय में। देखो, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसका कोई उत्तर मेरे पास तो है नहीं। मुझे लगता है इसका उत्तर शायद कोई संत दे सकता है, या बट ये है कि धर्म, जैसे मैंने कहा ना, सबके लिए अपना अपना धर्म है। कबीर रविदास के लिए अपना ही धर्म था कि भाई ठीक है, मन चंगा तो उठौती में गंगा, उनको धर्म वही मिलती थी। हाँ, तो सब नहीं, वो पंथ है, लेकिन पंथ की जो जो आत्मा है वो तो धर्म से आती है ना भाई। धर्म वैसे तो कहते हैं धर्म जो आप यथा वो क्या कहते हैं, धार्यतम, जिसको आप धारण करते हैं वही धर्म है, जैसे आप रहते हैं वो धर्म है। तो लेकिन वो धर्म कैसे, धर्म क्या है, फंडामेंटल्स है लाइफ के, जो या व्यवहार है, यानी सिद्धांत है और व्यवहार है, और उन सिद्धांत और व्यवहारों से पंथ निकलते हैं, जो पंथ उसको पालन कराने का। और पंथ एक तरह का रिफॉर्म भी होते हैं अपने अपने धर्मों में, जिसके कारण क्योंकि जैसे क्यों क्या जरूरत थी इतने पंथ पैदा होने की, क्योंकि वो अलग अलग रिफॉर्म्स को लेके आते हैं। नहीं तो सनातन धर्म है, सब सनातनी हैं, लेकिन अलग अलग सेक्ट्स भी हैं, तो उन्हें अलग अलग सवाल लेकर के वो धर्म पैदा हो, पंथ आते हैं, और फिर वो आप में समाहित हो जाते हैं। अलग अलग एक जगह से खड़े होते हैं, एक अपनी आइडेंटिटी सर्च करते हैं, फिर वो आपके बीच, यानी एक महान समुद्र का हिस्सा होते हैं, जिसको अम्बेडकर कहते थे कि ओशियन इन द ड्रॉप इन द ओशियन, यानी आइडेंटिटी शुड डिसॉल्व लाइक ड्रॉप इन द ओशियन। तो यहाँ भी ये होता है कि ड्रॉप इन द ओशियन चला जाता है, में समाहित हो जाता है। जी, कुछ कह रहे थे आप? एक तो है कि जो आंसर्स हम पा रहे थे बहुत ही साइकोलॉजिकल थे, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि क्यों आया, तो ऐसे आंसर गंगा मैया ने बुलाया, तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो ये है। दूसरा है कि मतलब ये बार रिपीट हो रहा है आंसर ऐसे। दूसरा है कि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इस मतलब लोगों से हम डायरेक्टली नहीं पूछ सकते उसी कारण, जैसे कि हो गया कि सन्यासी है उसका मैरिटल स्टेटस, या फिर हो गया कास्ट, एक सोशल रियलिटी है, एक एलिमेंट है हमारे उनका सोशल एक्सपीरियंस में, बट हम डायरेक्ट नहीं सीख सकते क्योंकि बहुत बार होता है अपना जो छाप छोड़ देते हैं उसके एक्सपीरियंसेस। तो इन सब क्वेश्चंस को हम कैसे पूछे अगर हम जानना चाहें?
फील्ड में जाना? देखो पहले तो ये कि क्यों आप कास्ट को समझना चाहते हो संतों में। संतों में नहीं, हाँ। जनरल। हाँ इन जनरल तो आप समझ सकते हो कि संतों में तो कास्ट की बड़ी मुश्किलात है, संतों क्योंकि वगैरह ये तो पूछना है कि विवाह वगैरह हुआ है अच्छा विवाह विवाह हुआ है तो मुझे लगता है कि वो बता देते हैं। अभी इन्होंने पूछा था कल, अभी मैं वीडियो सुना रहे थे, बाल योगी हैं, कोई कह देता है, कोई हम ये हैं। आप सीधे मत पूछो कि शादी हुई है कि नहीं। आप ये पूछ सकते हो परिवार आप कैसे आए, पहले कौन कौन था, आपके कैसे घर छोड़ा तो घर के में क्या था। ऐसे कहते हैं ना, ये सीधे सवाल नहीं पूछना चाहिए। सवाल हमेशा दैट्स व्हाई वी आर सजेस्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। उसमें सवाल हमेशा बात से बात जिसको कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए माँ आप ये पूछिए बाबा आप तो जब योगी हुए तो उसमें कैसे पिता वगैरह को छोड़ा होगा आपने, तो उसी में वो कह देगा कि नहीं हमने पत्नी को भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ दिया और छोड़ के आ गए। तो इस तरह के उत्तर आपको मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि एक ही आंसर कई जगह आपको सुनाई पड़ेगा, क्योंकि वही मैंने कहा काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट लैंग्वेज। जैसे गंगा मैया ने बुलाया है, तो गंगा मैया ने बुलाया है, एक ग्रेट लैंग्वेज है, हमारी एक पारंपरिक भाषा है कि भाई हम कहीं जाते हैं तो यदि माँ बुलाती है तो हम जाते हैं ना। ये एक परसेप्शन है, जो परसेप्शन हमारे उत्तर को रिसेव करता है। वो परसेप्शन हमारा एक्सपीरियंस भी बन जाता है, क्योंकि हम उसमें विश्वास करते हैं। विश्वास नहीं करेंगे तो वो उत्तर को रिसेव नहीं करेगा। तो हर प्रश्न का उत्तर है, बट यह है कि जैसे आप सामान्य लोगों से जाति पूछना है तो सीधे आप जाति मत पूछिए। आपको पता है कि गांव में बिरादरी शब्द का इस्तेमाल होता है, बात करते करते आप हल्के से पूछ सकते हैं अच्छा आप लोग आप बाबा किस बिरादरी के, बाबा नहीं मतलब सामान्य, तो शायद बता दे आपसे। या वो जैसे पूछे आप पहले गांव कहाँ गांव है, अच्छा वो प्रतापगढ़ में यहाँ है तो यहाँ है, अच्छा तो उस गांव में तो बहुत सारे लोग रहते होंगे, अच्छा हाँ बहुत सारी जातियां हैं उसमें, तो खुद ही ये जाति पर आ जाएगा, वो आपको बताना शुरू कर देगा। तो इट डिपेंड्स हाउ यू आर, यू कैसा आपने उसके साथ रिश्ता बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी बात से बात मेथोडोलॉजी में सखा भाव और सखी भाव। नो ट्राई टू इवॉल्व काइंड ऑफ, जिसको एंथ्रोपोलॉजी में वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजी में रैपो क्रिएट करना होता है। जब आप रैपो क्रिएट करते हैं तो आपसे बहुत सारी बातें बताना शुरू करता है। लेकिन कास्ट का प्रश्न शुरू में ना आए, कास्ट का प्रश्न बाद में आए तो ज्यादा मदद मिलेगी। शुरू में आ जाता है तो फिर वो भी कॉन्शियस हो जाता है और आप भी कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है। में जो पूंजीवाद और भौतिकता दिख रही है उसके संदर्भ में अब उसका तुम लोग उत्तर ढूंढो। ये है, देखो ये पूरी दुनिया बाजार के रास्ते पे जा रही है। मेले भी, अब मेला टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ गया है, तो वी आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ इकोनॉमी। तो व्यापार का एक सब बड़ा साधन है, लोग आ रहे हैं, शक्ति लोग हैं, लोग आ रहे हैं तो बाजार बन रही है, बाजार बन रही है तो सामान बिक रहा है, उसमें इसलिए कंपनीज आ रही हैं क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। और ये जो पूरा समय है, एक मैं अभी किसी एक किताब पढ़ रहा था, कैपिटलिज्म इन 25, इट इज रिटन बाय एन इकोनॉमिस्ट नोवेली। तो ही सेड कि दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेट, इस समय हर चीज बड़ा होना है। तो कोई भी चीज करो, या तो नंबर इतने लाख करोड़ को हमने कर दिया, या इतने लोग आते हैं यहाँ, 10 करोड़ लोगों ने नहाया। पहले तो ये संख्या नहीं दी जाती थी ना, लेकिन अब वो 10 करोड़ लोगों ने नहाया। अब ये 10 करोड़ इतना पावरफुल है कि जो नहीं भी आया है वो भी कहता है 10 करोड़ गए और हम क्यों छूट गए, हम ही जाएंगे, वो भी चलाता है। तो ये खास किस्म से ये जो ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस गलत शब्द है, ग्रेट महा बड़ा ना, बिगनेस, तो ये बिगनेस का टाइम है। और कैपिटलिज्म इस मामले में बहुत दुनिया का अभी तक जितने विचार आए हैं उसमें आर्थिक विचार सबसे स्मार्ट विचार कैपिटलिज्म है कि वो हर समय के अनुसार अपने को ट्यून कर लेता है और उसके अनुसार नया रूप ग्रहण कर लेता है। मार्क्सिज्म इसलिए फेल कर गया क्योंकि उसने स्टैटिक एक फिक्स पोजीशन ली, उसने बदलते हुए समाज को में के आधार पे अपने को परिवर्तित नहीं किया। दैट्स व्हाई दे फेल। हेलो हेलो प्रश्न है नमस्ते। फील्ड वर्क के आसपास रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी 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 हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? ठीक हैं। हाँ तो वो कल हमारी बात हुई थी, तो 28 को तो बहुत यहाँ सारे रास्ते बंद होंगे, और लेकिन अगर आप लोग हमारे यहाँ भी हम अगर आपकी गाड़ी अलाउ करें
तो पंत इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं, तो हम लोग स्वागत करेंगे और जैसा भी ठीक लगे और है ना, जैसा आप लोग कहेंगे सर, जैसा करें। हाँ, गेस्ट हाउस है, 2 वीआईपी रूम है, तो दोनों रूम हम रखेंगे सर के लिए, है ना। हाँ, तो वहीं आ जाइए, अच्छा रहेगा, यहीं पे ठहरिए अपना स्नान करके, क्योंकि पता है हमारा इंस्टीट्यूट संगम से थोड़ा ही दूर है, लेकिन हमें शहर जाने के लिए आप समझिए एकदम अलाउ नहीं है, क्योंकि 27, 28, 29 पूरा रास्ता बंद रहेगा, है ना। हाँ, रिजर्व रखेंगे, बट वो सर्किट हाउस की तरह बड़ा रूम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा रूम होगा, वीआईपी रूम है हमारा। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम लोग, आइए आप लोग, है ना। आप अपना मोबाइल हमें भेज दीजिएगा, आप सर के साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, भेज दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। अक्षय सर जी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ उनके सवाल और इनके सवाल से जुड़ा हुआ। भारतीय परंपरा ये कहती है कि आप सम्मान पूर्वक पहले ये जाने कि आप कुंभ में क्यों आए हैं। आपको जवाब मिलेगा ही नहीं, सामने से अगर पूछेंगे आपके पास अपना जवाब पहले ढूंढिए कि आप कुंभ में क्यों आए। और रही इनके सवाल की बात, भारतीय परंपरा है कि बाजार परिवार की सेवा के लिए बना है, परिवार बाजार की नौकरी और सेवा करने के लिए नहीं बना है। तो जो आप मेले में वीआईपी कल्चर या एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप छात्रों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान बनता है कि आप इसको रोकें। कैसे रोकेंगे? स्वयं को समझ के कुंभ से अपने आप को जोड़ पाएंगे। आप जब जोड़ेंगे तो रास्ते चलते एक व्यक्ति से आपने नमस्कार करा, जय सिया राम बोला, हर हर महादेव बोला, वो खुद जवाब देता है। हमारे पिछले 10 दिनों के अनुभव में हम 150-200 व्यक्तियों से हर व्यक्ति बात कर चुका है और हमें किसी ने गलत जवाब नहीं दिया। और अपनी गहराई वो गांव तक हमें अपने विचारों में और एक दृश्य में लेके गया। एक मिनट सर, एक बस लास्ट क्वेश्चन हाँ, लेंगे। एक मिनट, ओके मत प्लीज, जरूरी चीज बोल रहा हूँ मैं। नहीं, तो बस आपका टाइम कम है। सवाल का जवाब बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। आप कुंभ में क्यों आए, एक मेडिटेशन करके भी और अकेले घूम के भी आप जान सकते हैं। और आपका जवाब यह है कि बाजार को हावी होने से रोकना आपको खुद पड़ेगा, ये शिक्षा के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। अक्षय जी, सर मैं पिलग्रिमेज और जो हिंदुइज्म के संदर्भ में क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि 60-70s के अराउंड कुछ ऐसी टूरिज्म स्टडीज हुई जिन्होंने बताया कि कैसे पिलग्रिमेज से रिलीजियस की तरफ जा रहे हैं और आज एक टर्म का यूज होता है जिसको बोलते हैं सेकुलर टूरिज्म। तो जैसे जो ये पर्यटक आ रहे हैं या जो ये एक्सपीरियंस करने आ रहे हैं, तो क्या उनको हम तीर्थ के संदर्भ में देखेंगे, क्या उनको हम जो, क्योंकि तीर्थ में जब हम बात करते हैं कि एक रिचुअल होता है, ट्रेडिशन होता है, जैसे हम किसी देवी के जाते हैं तो पहले ज्ञान में भगत के जाना या फिर हनुमान और भैरव के जो द्वारपाल होते हैं उनका माथा टेकना, तो एक तरह से एक ट्रेडिशन होता है, एक रिचुअल होता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिचुअलिटी है वो हम तीर्थ में अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या वो तीर्थ कहलाएगा? और जो आम पर्यटक हैं क्या उनके लिए वो तीर्थ है या सिर्फ एक सेकुलर और रिलीजियस है? देखिए, यहाँ जो बड़ी जनता जो आती है उसके लिए तीर्थ है, तो घर से निकलती है तो रिचुअल करके निकलती है, कुंभ नहाने जा रहे हैं, और जब यहाँ तक पहुँचती है तो रिचुअल करती है वो। आप देखिए ये कल्पवासियों को उसमें जा करके। लेकिन ये जो हमारा मिडिल क्लास है, और खास करके जो मिडिल क्लास में भी जो हायर मिडिल क्लास है, वो आता है तो उसके लिए भी होता है, भाई हम नहाने जा रहे हैं ना गंगा, मतलब वो भी एक रिचुअल अपने दिमाग में, एक धर्म लेके आता है वो धर्म उसको। लेकिन वो धर्म लेके आता है, लेकिन वो यहाँ पर कल्पवास नहीं करना चाहता, कठिनाई में नहीं रहना चाहता, टेंट हाउस में रहना चाहता है, बड़े उसमें रहना चाहता है, बड़े होटल में रहना चाहता है, फ्लाइट से आना चाहता है। लेकिन उसके दिमाग में भी एक रिचुअल होता है, उसके मन में वो आता है तो नहाता है। नहाना खुद ही अपने आप में रिचुअल है। फिर वो दान देता है, कुछ करता है। तो यहाँ जो भी आता है वो एक उसका बड़ा अर्थ रिचुअल तीर्थ है। लेकिन अब वो जब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर व्यापार भी शुरू होता है, फिर वो विज्ञापन भी वहां आ जाती है, वहां बहुत सारी चीजें, लोग हैं तो बहुत सारी चीजें आएंगी उसके साथ। तो और वो आप रोक नहीं सकते, वो आएंगी ही आएंगी। बट ये है कि आप उसको विकृत होने से या समाज को विकृत करने से आप रोक सके। जैसे मान लीजिए कोई एडवर्टीजमेंट है जो कि गलत सी मैसेज को संवादित प्रवाहित कर रहा है, तो वो आप लिख सकते हैं अपने रिसर्च में कि भाई ये, और वो उससे वो शायद वो इस तरह की प्रवृत्तियां, कोई राइटर उस पर लिख सकता है, कोई रिसर्चर लिख सकता है, क्योंकि यू आर नॉट एक्टिविस्ट, तो आप नारा लगाते हुए वहां नहीं जा सकते, यू आर रिसर्चर। ये ठीक है कि आप में से कई लोग एक्टिविस्ट भी होंगे, लेकिन वो ठीक है, वो आपका अलग काम है, ये अलग काम है। तो यहाँ पर आपको लिख के उसको हमें अपनी बात कहनी है, रिसर्च करके, है ना।
जी सर जी Thank you, sir. That was an enlightening session. I hope that everyone gained something from बाद it. में And with this, I hope that the work that we are doing, the continuous work that you're doing, it will be very fruitful for everyone present here. From here, I'd like to end this session. Thank you, sir, for your time. Thank you. All the best for your future research in this Kumbh Mela. Sure. धन्यवाद सर Thank you.